Start part 3 of the bills of exchange. This is going to be the last part, and we are going to solve a different type of bill which is not a trade bill. We are going to understand the concept of accommodation bill. Okay, what is accommodation bill? Earlier also I have discussed something about the accommodation bill, which is basically drawn between the two parties for mutual benefit. So I'm just reading it down. The basis of accommodation bill is not a trade transaction. It draws to accommodate the financial requirement of a drawer and even a drawee. The transaction presupposes trust and understanding between the parties to the transactions. The drawer normally discounts the bill with the bank. It's very normal. Last time मैंने आपके संग पूरा ये discuss किया हुआ है. The amount received from the bank is either retained by the drawer for himself or shared between the drawer and the drawee, and they're proportionate, right? On the date of maturity, the drawee settles the bill with the bank by effecting the payment. The drawer will pay the drawee either a full amount of bill or his share. Accounting entry of the accommodation bill are as follows. So basically simple है, एक person दूसरे person पे draw करेगा, like what we have discussed earlier, like A is a draw and a B is accepting the bill, that is a drawee. So if drawee accepts the bill, so in that case the bill goes to A and A will go to the bank for discounting the amount, right? क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है. Once the amount is get discounted, that bills get discounted, then A will either keep that money with him or else share between A and B in their predefined ratio. And the due date after the 2 months or the 3 months, B is supposed to meet up the bill on a maturity date, right? So in that case, B is supposed to pay the amount. If they had not shared the amount, or if they have shared, whatever the case may be, A will give the amount to B कि भाई मेरे शेयर का आप पैसा ये ले लो 50,000, आप खुद का 50,000 इंक्लूड करो और बैंक को वो बिल का अमाउंट का पेमेंट करो. सो दिस बिल इज़ बेसिकली ड्रॉन फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, ताकि इनको इमीडिएट मनी मिल सके. व्हाट इज़ द ट्रांजैक्शन, व्हाट इज़ द जर्नल एंट्री? नॉर्मल है, जब बिल ड्रॉ करेंगे तो बिल्स टू ड्रॉई एंड हियर ड्रॉज टू बिल्स पेबल. डिस्काउंट करेंगे तो वही एंट्री आएगी डिस्काउंटिंग वाली. इसके बुक्स में डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं आती है. एंड पेमेंट ड्यू ऑन ड्यू डेट में जब ड्रॉ पेमेंट करेगा अमाउंट का, तो ड्रॉई टू बैंक, क्योंकि ये डिस्काउंट हुआ है इसीलिए ड्रॉई टू बैंक है. और यहाँ पर एंट्री आएगी बिल्स पेबल टू बैंक. Okay, the more idea you will get once we are moving towards the sum and try to solve each sum is properly. So illustration क्या बोल रहा है? Following information is to given to by the books of Govind from his book. On 1st April he had with him. अब देखो क्या क्या दिया हुआ, एक बार अच्छे से समझेंगे. 1st अप्रैल को इसके पास बिल 1.5 लाख का बिल था, उसके कस्टमर ने एक्सेप्ट किया. 1 लाख वर्थ अकोमोडेशन बिल एक्सेप्टेड बाय हिज फ्रेंड. अब देखो यहाँ पर कस्टमर कर रहा है एक्सेप्ट, दिस इज मीन्स दिस इज अ ट्रेड बिल. एंड इफ द anybody is or else is accepting, like friend or relative, this means this is accommodation bill. He has accepted the bill. अब इसने खुद ने भी सप्लायर से एक्सेप्ट किया है, दिस इज अ ट्रेड बिल. एंड 75 वर्थ अकोमोडेशन बिल फॉर हिज फ्रेंड, मतलब वो फ्रेंड के लिए एक्सेप्ट किया है, मतलब 75,000 मीन्स इन दिस केस यहाँ पर अगर बात करेंगे तो दिस इज एकोमोडेशन. बिल्स रिसीवेबल पहले वाला था, ये बिल्स पेबल है. ओके, नाउ ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस. ये हमें डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. हमें क्या बोल रहे हैं? यू आर सपोज टू प्रिपेयर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स, बिल्स पेबल अकाउंट फॉर बोथ ट्रेड एंड अकोमोडेशन बिल. Okay, so we'll start this sum properly line to line and solving each concept. Okay, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, पहले आप ये समझ लो. नॉर्मल बिल्स रिसीवेबल, नॉर्मल बिल्स पेबल, दिस इज कॉल्ड ट्रेड बिल. अब यहाँ पे आएंगे तो ये क्या है? अकोमोडेशन बिल है. अकोमोडेशन बिल रिसीवेबल एंड अकोमोडेशन बिल पेबल, मतलब ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए किया गया है और हमें बनाने नहीं बोला गया है, बट यू कैन मेक अ फ्रेंड्स अकाउंट जो एक्सेप्ट किया है बिल को, और
फ्रेंड्स अकाउंट जो ड्रॉ किया है हम पे बिल्स को, तो हम वो चीज़ को भी हम यहाँ पर डिस्कशन में ले लेंगे. देन सो फर्स्ट व्हाट दे हैड गिवन अस, ओपनिंग बैलेंसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल this is accepted by customer. This is means this is a opening balance of bill receivable. So यहाँ पर आएगा 1st April to बैलेंस है ये हमारा, राइट, 1,50,000, राइट. अब सेकेंड हमें दिया हुआ है 1,00,000 वर्थ अकोमोडेशन बिल एक्सेप्टेड बाय हिज फ्रेंड. अब ये भी बिल्स रिसीवेबल है, फ्रेंड ने किया है, तो बस पॉइंट इज कि ये हमारा कहाँ पर आएगा, दिस विल बी द अकोमोडेशन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड दैट इज अगेन 1st April. सॉल्व अलॉन्ग विथ मी, नहीं तो आपको खुद को भी नहीं समझ में आएगा कि ये पोस्टिंग्स किधर जा रही है, एंड इट बिकम्स अ मेजर इशू, क्योंकि यहाँ पर पोस्टिंग को एक एक पॉइंट पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक भी अमाउंट डेबिट या क्रेडिट अपोजिट साइड पोस्ट हो गया तो प्रॉब्लम्स हो जाता है, मिस्टेक हो भी सकता है इस केस में. सो अब यहाँ पर इसने 90,000 एक्सेप्ट किया है, मतलब यहाँ पर हमारे लिए ये बन गया बिल्स पेबल, राइट. वेट, by balance and what is the amount, 90,000. Done. And also they have accepted 75,000. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1st April में 75,000 मतलब by balance इनका अमाउंट कितना है, 75,000. Done. Now ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टेक प्लेस. अब हम आ रहे एक एक ट्रांजैक्शन को रीड करने के लिए. तो व्हाट दे आर टेलिंग, ही रेज्ड अ बिल ऑफ 3,75,000 विच इज़ एक्सेप्टेड बाय हिज कस्टमर. मतलब इसका मतलब क्लियर हुआ. देखो वी हैव नॉट बिन गिवन अ डेट, आई डोंट थिंक सो, यहाँ बहुत कम के डेट्स दिए हुए हैं. सो एक बार मैं कुछ भी डेट लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है. और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक नया बिल रेज हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारा बिल रेज हुआ है वो हमारा डेटर ने एक्सेप्ट किया है. सो डेटर अकाउंट में पोस्टिंग होती है और कितने अमाउंट की, 3,75,000. देन ही एक्सेप्टेड द बिल ऑफ फ्रॉम हिज सप्लायर. मतलब अब इसने एक्सेप्ट किया है, सो मतलब ऑल बिल्स पेबल बढ़ गए हैं. इवन आई डोंट नो द डेट, सो आई एम राइटिंग लाइक दिस इन द बिल्स पेबल अकाउंट. बिल्स पेबल में कितना अमाउंट है उन्होंने एक्सेप्ट किया, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक. दे हैव एक्सेप्टेड 2,25,000. सो बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर के अकाउंट में हमारा पोस्टिंग होगा 2,25,000 से. देन अब हम आगे बढ़ेंगे, एक एक एंट्रीज को हम ख़त्म करते जा रहे हैं. ही एक्सेप्टेड अकोमोडेशन बिल ऑफ 60,000 फॉर हिज फ्रेंड. सो ही हैज़ एक्सेप्टेड, मतलब उसने एक्सेप्ट किया तो उसके लिए बिल्स पेबल की जैसा ट्रीटमेंट होगा, राइट. तो अब देखो जब मैं बिल्स पेबल में जा रही हूँ लेकिन ये अकोमोडेशन बिल है एंड आई डोंट नो द डेट, तो यहाँ लिखूँगी. देखो यहाँ पर बैलेंस नहीं आएगा, डेटर नहीं आएगा, क्रेडिटर नहीं आएगा. यहाँ पर वो फ्रेंड आएगा जो उसके ऊपर ड्रॉ किया था. तो यहाँ फ्रेंड अकाउंट जो अमाउंट ड्रॉ हुआ है दैट इज़, जस्ट अ मिनट, अमाउंट इज़ 60,000. सो ये 60,000 एंट्री क्या हो रही है, देखो हम क्या पोस्टिंग करते हैं, फ्रेंड्स अकाउंट डेबिट टू अकोमोडेशन बिल्स पेबल अकाउंट. एंड फिर अकाउंट कौन है यहाँ पर, ड्रॉर. ओके, सो आई डोंट नो द डेट, बट यहाँ पर मैं यहाँ लिखूँगी ड्रॉर कितना है हमारे केस में, 60,000. तो मैं यहाँ लिखूँगी टू accommodation bills payable, right, amount will be 60,000. अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पर अराइज होगा, इसका बैलेंस है, राइट, इसका बैलेंस है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स भी है. तो डेफिनेटली 1st April को इसका भी बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है. तो यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, टू अकोमोडेशन बैलेंस, सॉरी नॉट बैलेंस, द बैलेंस विल बी डन. अब वैसे ही जो एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस मेरे लिए बिल रिसीवेबल है, इनका भी बैलेंस यहाँ पर आएगा किसके अकाउंट में, एक्सेप्टर के अकाउंट में. बस ये डेटर क्रेडिटर नहीं है, बाकी वही चीज़ है लेकिन फ्रेंड का नाम लिया गया है यहाँ पर.
क्योंकि डेटा क्रेडिटर होता है तो मैं डेटा क्रेडिटर की पोस्टिंग, और हमें फ्रेंड्स का अकाउंट एज सच बनाना नहीं है, बट टू मेक यू क्लियर कि हम पोस्टिंग क्या कर रहे हैं, आई एम गिविंग यू दिस डिटेल. Moving forward, a friend accepted a bill's accommodation of 1,25,000 for him. अब यहाँ पर उसने उसके फ्रेंड ने एक्सेप्ट किया, मतलब हमारे लिए क्या है, 1,25,000 इज अ बेसिकली बिल्स रिसीवेबल. आई डोंट हैव द डेट, सो मैं यहाँ लिखूँगी अगेन फ्रेंड, लेकिन यहाँ लिखूँगी एक्सेप्टर वाला फ्रेंड है ये हमारा, राइट कितना, द अमाउंट इज जस्ट अ मिनट, दिस इज 1,25,000. 1,25,000 का एक्सेप्टेंस किया गया है. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम नेक्स्ट जाएंगे. ही ऑनर्ड ऑन अ ड्यू डेट ट्रेड बिल ऑफ 1,75,000 एंड अकोमोडेशन बिल ऑफ 85,000. अब यहाँ पर देखोगे ड्यू डेट आया ट्रेड बिल का और 1,75,000 का ऑनर किया, एंड अकोमोडेशन बिल भी ऑनर किया उसने 85,000 का. सो इन दैट केस हम आएंगे 1,75,000 पोस्टिंग करेंगे, मतलब हमारा बिल्स पेबल का अमाउंट कम हो गया है और ये बन जाएगा 2. हम इसको ऑनर कर रहे हैं, राइट, तो ऑनर कर रहे हैं तो हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, अमाउंट इज 1,75,000, राइट. एंड सेम वे मैंने एक और एकोमोडेशन बिल को ऑनर किया है 85,000, मतलब जो मेरा बिल्स पेबल एकोमोडेशन बिल्स पेबल था वो भी मैंने एक्सेप्ट किया है टू बैंक करके, क्योंकि उनको मैंने पेमेंट किया है. व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ दैट, 85,000. डन. अभी देखो एक एक एंट्री ख़त्म हो रही है. ही रिसीव द पेमेंट ऑन ड्यू डेट फॉर ट्रेड बिल. अच्छा, ट्रेड बिल का 4 लाख उसे मिल रहा है एंड अकोमोडेशन बिल पे 1.5 लाख मिल रहा है. तो ट्रेड बिल पे उसे मिल रहा है कौन से डेट पे, वॉट एवर द केस, ईयर एंड है कि क्या, वो हम बाद में देखेंगे. बाय मिल रहा है, मतलब कितना मिल रहा है, दैट इज कम्स टू 4 लाख. ठीक है, 4 लाख का हमें अकोमोडेशन बिल का अमाउंट मिल रहा है. मूविंग फॉरवर्ड, अब ये चीज़ हमें अकोमोडेशन 1.5 लाख मिल रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर बाय बैंक लिख कर हमें कितना मिल रहा है, 1,50,000. सो मोस्ट ऑफ द एंट्री वी हैव पोस्टेड. यहाँ पर हमारा 1.5 लाख की एंट्री हो रही है. डन. अब थोड़ा सा देखो, एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगी. जब इनको पेमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा ये कौन है, बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल मतलब जो यहाँ पर राइट हमें एक्सेप्टेड किया है वो भी हमें पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर वो भी एंट्री आएगी अकोमोडेशन बिल की जो 1.5 लाख की एंट्री. और एट द सेम टाइम 1,25,000 पोस्टिंग मैंने यहाँ करना भूल गई हूँ, तो ये भी पोस्टिंग. एक्चुअली दोनों साथ साथ में चलना चाहिए. एकोमोडेशन बिल्स रिसीवेबल, राइट, बिल्स रिसीवेबल, ये हमारी देखो, ये जो कनेक्ट कर रही हूँ, कीप इट इन माइंड. एक बार मैं वापस से आप लोगों को क्लैरिफाई करी क्योंकि एक एंट्री मिस हो गई. तो ये देखो, इसका जैसे हमारा इसका क्या होता है, डेटर होता है पोस्टिंग. ओके, यहाँ पर किसके साथ हमारा वर्क चल रहा है, क्रेडिटर के संग हमारा वर्क चल रहा है. अब यहाँ पर हमारा अकोमोडेशन बिल की बात करेंगे तो अकोमोडेशन बिल का डेट, ये है हमारा कनेक्शन, डेट इज़ कॉल्ड डेटर, राइट. एक्सेप्ट किया हमने, फ्रेंड है जो एक्सेप्टर, एंड सेम वे बिल्स पेबल जिसको हमने वो ड्रॉ किया, तो ये कनेक्शन है. तो जो पोस्टिंग यहाँ पर होगी वैसी ही पोस्टिंग यहाँ पर होगी, क्योंकि ये हमारे डेटा क्रेडिटर का रोल प्ले कर रहा है. तो यहाँ पर आई नीड टू राइट ओवर हियर 1,25,000. और हमारे कुछ डेटर ने कुछ पैसा दिया, मतलब फ्रेंड है, अब डेटर नहीं है, फ्रेंड है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री भी यहाँ पर होनी चाहिए. कितना होगा, 1,50,000. ठीक है, अब ये हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई. सेम वे वी विल चेक कि हमने कोई पोस्टिंग, अच्छा देखो यहाँ पर एक पोस्टिंग मिस हुई है, ये भी पोस्टिंग हमारी कर लेने की है. सो बाय बैंक 85,000 डन. सो ऑल पोस्टिंग आई हैव डन. अब मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा जूम ऑन करूँगी. He endorsed a bill of 25,000 to his supplier which were honored by his acceptor. मतलब देखो, उसने क्या किया, 25,000 का जो बिल्स था उसने अपने सप्लायर को पास ऑन किया. ठीक है, जब ये सप्लायर को 25,000 का, मतलब अब
इसमें से अगर आप देखोगे तो एंट्री क्या बनती है हमारी, जो हमें मिला है तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल। तो अगर आप देखोगे तो कोई भी एंट्री 25,000 की, तो एंट्री क्या हुई, क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे कर रहे हैं टू बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ बिल रिसीवेबल के अकाउंट में क्या आएगा, बाय क्रेडिटर। अब क्रेडिटर का अकाउंट हिट होगा, लेकिन हमें तो बनाना नहीं है क्रेडिटर का अकाउंट, क्योंकि एज सच यहाँ बोला हुआ नहीं है, नहीं तो उसके अकाउंट में भी ये पोस्टिंग होती। तो ये मैंने एंडोर्समेंट की एंट्री कर दी, एंड विच वॉज ऑनर्ड बाय एक्सेप्टर। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो भी बंदा था इसको ये ऑनर किया है, तो यहाँ पर स्टोरी हमारी क्रेडिटर कम हो चुका है, ख़त्म हो गई स्टोरी। ठीक है, अब हम आएंगे, his customer endorsed a bill 30,000 to him which he accepted in favor of his supplier. Oh, तो यहाँ देखो his customer, अब इसका जो भी कस्टमर था उससे उसने उसको 30,000 का बिल दिया, एंडोर्स करके दिया, राइट। तो इसे बिल्स रिसीवेबल मतलब किसी और का मिला, एंड उसने जो एक्सेप्ट किया वो अपने सप्लायर के नाम पे एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर कस्टमर जनरली पे करता है तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं। तो कस्टमर तो ठीक है हमारा कम हो गया, लेकिन अभी साथ साथ में हमारा सप्लायर भी कम हो रहा है। तो सप्लायर जब कम हो रहा है तो वो जो भी बिल है एज इफ ही हैज़ पेड अस दैट बिल 30,000 का, तो यहाँ पर अगर एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी कि 30,000 का हमें बिल्स पेबल, देखो क्या लिखा, विच ही एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट किया, वो बिल जो मिला कस्टमर जो इंडोर्स किया था उसने एक्सेप्ट किया इन फेवर ऑफ सप्लायर, मतलब यहाँ पर एक्सेप्टेंस हुआ, मतलब यहाँ पर बिल्स पेबल का अमाउंट आया, बिल्स पेबल है। व्हाट आई विल डू, आई विल पास वन एंट्री फॉर यू। अब इसमें जो जर्नल एंट्री पास होगी, तो बेसिकली जब एंडोर्स होता है, कस्टमर एंडोर्स्ड अ बिल ऑफ 30,000 टू हिम। सो बेसिकली जब एंडोर्समेंट होता है तो उसके ऊपर एंडोर्स किया गया है बिल, राइट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं उसके कस्टमर, मतलब अभी डेटर क्या दे रहा है, बिल रिसीवेबल टू कस्टमर, उसका कम हो जा रहा है डेटर, राइट। अब हमने क्या किया, जैसे ये डेटर आया, गोविंद ने क्या किया, जैसे ये बिल्स आया उसने अपने सप्लायर के फेवर में एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे गोविंद का क्रेडिटर कम हो गया, तो मीन्स क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल। आइडियली एंट्री ये होती है, बट अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल इट्स बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया, एजम्पशन दिया है कि ये जो एक्सेप्टेंस हो रहा है वो क्रेडिटर के तरफ नहीं हो रहा है, इट इज़ बेसिकली एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द बिल्स पेबल। ये भी हमारी लाइबिलिटी है, राइट। ये लाइबिलिटी को कम करने के लिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई द एंट्री पास्ड ओवर हियर इज़ टू डेटर, मतलब डेटर बोल लो या बिल्स बोल लो, इन्होंने ये भी जो डेटर को बोला कि हमारे बिल्स पेबल वालों को पेमेंट करो, तो यहाँ पर इन्होंने ये जो एंट्री दिखाई विद दिस अजम्पशन कि जो पेमेंट हम सामने वाले कस्टमर से ले रहे हैं वो हमारे लाइबिलिटी बिल्स पेबल के अगेंस्ट जो हमारे सप्लायर को देना इन फेवर ऑफ सप्लायर, वो बिल्स पेबल के कम करने के लिए हमने एक्सेप्ट किया है। ओके, एज इफ वी हैव इंडोर्स दैट बिल, मैंने एक जन से लिया बिल्स को, अपने कस्टमर को, अपने सप्लायर को पास ऑन कर दिया, तो और उनको बोला आपके पास जो बिल है वो हटाओ और ये वाला बिल को यूज़ करो, मतलब एक बिल के सामने, एक बिल्स पेबल के सामने बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल किया है। ओके, accommodation bills were settled on due date and money was paid and received duly। तो accommodation भी प्रॉपर हो गया एंड रिसीव हो गया। तो अब हम एक काम करेंगे, हर अकाउंट को हमको टैली करना होगा टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या बैलेंस किस में आ रहे हैं। सो 5,25,000 एंड हियर विल बी द, अभी ये सब चीज़ को टैली कर दोगे तो आपको खुद को क्लियर हो जाएगा कि वेयर वी आर गेटिंग अ बैलेंस। दैट मीन्स 1 लाख का यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है, मतलब वी हैव अ ट्रेड बिल वर्थ ₹1 लाख। सेम वे इफ यू विल टैली, ओके, तो यहाँ पर आपको दिखेगा द बैलेंस ऑफ 3,15,000 माइनस 205 डन 1,10,000। लेकिन भी ये एजम्पशन ध्यान रखना, इन्होंने जो भी एक्सेप्टेंस किया है क्रेडिटर की तरफ नहीं किया है, एक और लाइबिलिटी बिल्स पेबल की तरफ एक्सेप्टेंस किया है। द ओनली डिफरेंस इज दैट ओनली। नाउ वी विल गो टू द बिल्स, अकोमोडेशन बिल्स। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो व्हाट विल बी द टोटल,
2,25,000. ठीक है, सो यहाँ पर हमारा बैलेंस कितना आएगा? डन. सेम वे हियर ऑल्सो विल गेट. अच्छा, दे हैव टोल्ड अस कि दिस इज बेसिकली एकोमोडेशन ट्रेड बिल सबके बैलेंसेस निकालने के लिए, तो हम वही करने जा रहे हैं. अच्छे से देखो, दिस माइनस 85,000, दिस विल बी द 50,000 बैलेंस. यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बैलेंस लिख रही हूँ. नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द फ्रेंड्स, क्योंकि इनके भी बैलेंसेस वैसे ही निकलेंगे जैसे ऊपर निकले हैं. $75,000. आप फटाफट कैलसी से टोटल कर लो तो इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल गाइज. आई एम डूइंग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज एंड ऑल. ओके, ये देखो, इसमें आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, आपको ये समझना व्हाट वी हैव डन हियर. ओवरऑल सम को अगर हम देखेंगे, ये समझा रहा है सम कि जब भी बिल्स पेबल और रिसीवेबल, नॉर्मल बिल्स पेबल एंड रिसीवेबल का एक्सेप्टेंस या ड्रॉ करते हो वॉट एवर, यहाँ पर अगर आप जो भी करते हो तो नॉर्मल बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अकाउंट में आ जाता है एंड रिस्पेक्टिव डेटर एंड क्रेडिटर हिट होता है. बट इफ़ यू आर डूइंग एनी ट्रांजैक्शन विथ योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स एंड whomsoever, लेकिन बट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, तो ये हमारी एंट्री ट्रेड बिल से अलग होकर अकोमोडेशन बिल में बैठेगी और वो अकोमोडेशन बिल आपके दूसरे अकाउंट को हिट करेगा, दैट इज़ फ्रंट एक्सेप्टर और ड्रॉर ऑफ द बिल, बट नॉट विद द नॉर्मल डेटर एंड क्रेडिटर. दिस इज़ द ओनली पॉइंट टू बी मतलब टू डिस्कस ओवर हियर. यहाँ पर ओवरऑल पॉइंट यही डिस्कशन का था. And then we are moving towards the next sum. So already I have shared a solution of the last sum which we have done. Moving forward to the next sum is a Vijay draws a bill of 60,000 on Anand. So Vijay has drawn a 60,000 bills on Anand, and Anand accepts the same for the mutual accommodation of both of them, and to the extent that Vijay will have 2/3, मतलब इनके बीच में जो डिस्कशन हुआ है दैट इज दे विल हैव 2/3 एंड इट्स गोइंग टू बी 1/3 इन द केस ऑफ आनंद. विजय डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 56,400, मतलब विजय के पास जो बिल आया वो बैंक के पास लेके गया टू द बैंक, एंड बैंक के पास से ही हैज़ डिस्काउंटेड द 60,000 का बिल फॉर 56,400 एंड रेमिट द 1/3. इसका 1/3 इसने किसको दे दिया? आनंद को. बिफोर द ड्यू डेट आनंद ड्रॉज अनदर बिल ऑफ 84,000. लाइक अब जब ड्यू डेट आया उसके पहले ही आनंद को जब फिलअप पे करना था पहला बिल, उसके पहले ही उसने एक अनदर बिल, आनंद ड्रॉज अनदर बिल ऑन विजय इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फंड टू मीट द फर्स्ट बिल. लाइक अब इन जब इसे बैंक को देने की बारी आई उसके पहले ही इसने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया अनदर बिल, राइट. सो यहाँ पर अगर बात करोगे तो अब इस केस में इसने एक्सेप्ट किया और ये लेके गया बैंक के पास, राइट. एंड दिस बिल ऑफ 84,000 हैज़ बिन डिस्काउंटेड. यही 84,000 का बिल जो है उसने सॉरी कितने में किया? 81,600 में उसने डिस्काउंट करवाया. विद दिस प्रोसीड द फर्स्ट बिल इज सेटल एंड 14,400 वे रेमिटेड टू विजय. स्टोरी बहुत लंबी चल रही है एंड बिफोर ड्यू डेट द सेकेंड बिल विजय बिकम्स इंसॉल्वेंट. ओ मतलब ये सब प्रोसेस में लास्ट में जब सेकेंड बिल पे करने की बारी आए तो विजय बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड आनंद रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन अ रुपीज इन फुल सेटिस्फैक्शन. तो ये बात आ गई इंसॉल्वेंसी की. Now pass the journal entry in the books of विजय. हमें यहाँ पर ओनली बुक्स ऑफ विजय के
द अकाउंटिंग वी हैव टू सी, नॉट इन द बुक्स ऑफ आनंद. बट अगर आनंद यहाँ पर विजय बिकम्स इंसॉल्वेंट, राइट, तो ये विजय ही है जिनकी बुक्स में वो खुद इंसॉल्वेंट हो रहा है. सो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर डेफिशिएंसी अकाउंट की एंट्री भी आएगी. ओके, लेट अस डू दिस सम. ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ वर्किंग नोट जैसा आप बोल सकते हो जो हमें बनाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द होल अकाउंटिंग, हाउ वी हैव टू डू. तो पहले मैं फर्स्ट बिल की बात करती हूँ. ठीक है, फर्स्ट बिल में, सो ऑल अबाउट फर्स्ट बिल. फर्स्ट बिल के अंदर यू कैन सी दैट विजय इज इन्वॉल्व. विजय इज देयर, सो आई जस्ट फोकस दिस पार्ट. विजय इज देयर एंड आनंद इज देयर. ठीक है, विजय कितने पार्ट के लिए है? एज वी ऑल अवेयर इट इज फॉर 2/3. एंड आनंद, आई एम सॉरी, आई विल जस्ट राइट इट लाइक 2/3. okay, instead of that I will not write 2/3, 2, because it is capturing date. And second, it is for only 1/3. ये हमें ध्यान रखना है. ठीक है, अब हम फर्स्ट बिल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं. फर्स्ट बिल कौन कितने अमाउंट का था? इफ़ यू कैन सी इट इज़ ऑफ 60,000 एंड उन्होंने डिस्काउंट किया था 56,400. मतलब आइडियली ये टोटल हमारा जो अमाउंट था दैट वाज 60,000, राइट. लेकिन इसका टोटल जो हमें प्रोसीड मिला, राइट, इसको बोलेंगे टोटल राइट प्रोसीड. अब टोटल प्रोसीड कितना है? 56,400. एज यू नो, ये जैसे 56,400 आता है, सो दिस 56,400 विल बी डिवाइडेड बिटवीन multiplied by 2 divided by 3. I'm sorry, wait a minute. Multiplied by 2 divided by 3, that is 37,600 विजय के बकेट में. And rest part, that is 1/3 multiplied by 1 divided by 3, 18,800 आनंद के हाथ में आएगा. लेकिन हमारा बिल तो 60,000 का है, राइट. तो मतलब देयर इज अ डिस्काउंट जो बेयर करेंगे ये लोग, तो ये हमारा बनेगा प्रोसीड. PROCED, प्रोसीड मतलब इतने का अमाउंट का हमारा पैसा आया जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, राइट. लेकिन इस केस में अगर आप ध्यान दोगे तो देयर इज अ डिस्काउंट ऑल्सो, तो डिस्काउंट भी दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट विल बी 60,000 का बिल था, राइट, हमें मिला 56,400. सो 3,600 का डिस्काउंट है एंड अगेन दिस विल 3,600 विल बी शेयर्ड बिटवीन किसके बीच में? 2/3 एंड 1/3 बिटवीन 2,400 एंड दिस विल बी 1,200. सो अगर आप देखोगे फर्स्ट बिल को मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसको हम जर्नलाइज कैसे करेंगे. तो अभी हमें समझ गया विजय अपने बुक्स में एंट्री डिस्काउंट की, क्योंकि वो इतने का डिस्काउंट बेयर कर रहा है और उसकी बुक्स में इतना पैसा आ रहा है. सो वेन एवर वी आर राइटिंग वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. एंड ऑल्सो यहाँ पर विजय ने ड्रॉ किया है बिल, आनंद ने एक्सेप्ट किया. तो एक प्रोसेस ये भी समझना है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करना चाहूँगी कि विजय आनंद को दिया है, राइट. यहाँ आनंद आएगा, आनंद इज अ एक्सेप्टर. सो बेसिकली बैंक के पास कौन लेके जा रहा है? बैंक के पास विजय लेके जा रहा है. सो बैंक के पास से विजय को कितना मिल रहा है? 56,400, राइट. एंट्री समझने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट बिल. अब हम सेकेंड बिल के कॉन्सेप्ट में जाएंगे, क्योंकि सेकेंड बिल भी क्या हो रहा है, अपोजिट केस है यहाँ पर. सो व्हाट द सेकेंड बिल सेज? सेकेंड बिल का अमाउंट भी अलग है. वेट अ मिनट, आई जस्ट चेक इट. सेकेंड बिल का अमाउंट 84,000. सो ये हमारा 84,000 है, राइट. ओह आई शुड नॉट. अच्छा, प्रोसीड्स कितना मिला? 81,600, राइट.
एंड दिस 81,600 विल बी डिवाइडेड बिटवीन टू इन दिस रेशियो. याद रखना ये पूरा का पूरा सेकेंड प्रोसीड है, एज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट प्रोसीड. सो ये मैं आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ इट, एंड दिस इज द होल फर्स्ट प्रोसीड. आपके लिए थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा. डन. अब ये सेकेंड प्रोसीड में डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट विल बी it the whole amount will get changed, that is 84,000 minus 81,600. Then 2,400 का, and that will be distributed between 1,600, and this will not be 1,200, this will be 800. अभी आपको यहाँ पर स्टोरी समझनी पड़ेगी. यहाँ पर एक्सेप्ट कौन किया था बिल? आनंद ड्रॉज अ बिल for 84,000 on Vijay in order to provide the meat, and the second was discounted. Okay, तो यहाँ पर सीन चेंज हो गया है. तो यहाँ पर आनंद ने ड्रॉ किया था. आनंद हैज़ ड्रॉन द बिल ऑन विजय, एंड विजय हैज़ एक्सेप्टेड द बिल, एंड फाइनली बैंक के पास कौन लेके जा रहा है? यहाँ पर हमारे केस में आनंद लेके जा रहा है, एंड ही इज़ गेटिंग 81,600 का प्रोसीड. ठीक है. तो यहाँ पर एक एक स्टोरी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कितना बेयर कर रहा है. अब यहाँ पर हमारा लास्ट में इंसॉल्वेंसी आती है, जो अभी मैं नहीं बताऊंगी. नेक्स्ट अभी हम इसकी एंट्रीज पास करेंगे. वेट, चलेगा. अब एंट्री सबसे पहले आई विल पास इन द बुक्स ऑफ विजय. फर्स्ट एंट्री क्या होगी? अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करें, जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट मेक अ शॉर्ट विजिबिलिटी हियर. राइट. सबसे फर्स्ट स्टेप मैं फॉलो करूं तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री. सबसे पहले हमारे अगर फॉर्मेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ओके, हाँ. सो यू कैन सी विजय ड्रॉज अ बिल. विजय का बुक है, तो विजय पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है. विजय ने ड्रॉ किया बिल, तो फर्स्ट बिल सबसे पहले ड्रॉ होता है, तो उसके बुक्स में एसेट आता है. किस पे ड्रॉ किया बिल? आनंद के अंदर में, राइट. आनंद के बकेट में. तो आनंद के जब बकेट में उसने ड्रॉ किया बिल, तो अमाउंट विल बी, जब स्टार्ट किया, दैट विल बी 60,000. देन सेकेंड, Anand accept this in mutual and get it to the extent of 2/3 and 1/3. विजय डिस्काउंट. अब विजय यही बिल्कुल ले जाके डिस्काउंट करा रहा है, तो आपको पता है एंट्री क्या होगी. I'll just put it second. I don't know, everywhere it is capturing date format. No worries. हम यहाँ पर सेकेंड. बैंक में पैसा आएगा 2, BR डिस्काउंट करा रहे, तो BR का क्लोज होगा, और डिस्काउंट हो रहा, दैट इज़ अ खर्चा. ठीक है. अब बैंक में कितना पैसा आ रहा है, अगर ध्यान देना, तो पूरा का पूरा प्रोसीड इसके बकेट में आ रहा है अभी के लिए, राइट. ये देखो यहाँ पर पूरा का पूरा. एंड 3,600 इज बेसिकली इज अ डिस्काउंट. अभी ये अपने बुक्स में लिख रहा है, बाद में वो BR को क्लोज करेगा. तो सिंपल तरीके से मैंने एक डिस्काउंटिंग की एंट्री पास कर दी. अब मैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब मैं आनंद का पोर्शन, आनंद के लिए रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि अभी मैंने ये पूरा का पूरा किया, लेकिन आनंद को अभी मुझे देना है, राइट. 1/3 उसको रेमिट करना है, क्योंकि अभी बैंक में मेरे पास पैसा है. तो आनंद बिकम अ डेटर. वेट अ मिनट. हाँ, आनंद बिकम डेटर ओवर हियर. तो मैं लिख रही हूँ आनंद अकाउंट. अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, मैं बैंक में से उसको पैसा दूंगी, और साथ में जो आनंद का डिस्काउंट है वो मेरे लिए इनकम होगा. कैसे इनकम होगा, अच्छे से समझो. वेट अ मिनट. देखो, ये मेरे बैंक में आया 56,400, लेकिन आनंद को देना पड़ेगा मुझे 18,800, राइट. इतना तो मुझे उसको देना ही पड़ेगा. अब डिस्काउंट मैंने बेयर किया 3,600, लेकिन आनंद के बकेट का 1,200 मैं उससे लूँगी, तो ये 1,200 रुपये मुझे उसके पास से मिलेगा, राइट. तो आनंद को एक्चुअली देखा जाए तो मुझे 20,000 का डेटा क्रिएट करना है. 1/3 ऑफ द प्रोसीड आई नीड टू पे, लेकिन किस तरीके से किया वो समझना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड,
अब मैंने ये फर्स्ट बिल की एंट्री की, अब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और वो क्या करना चाह रहे हैं वो हम देखेंगे। देखो, बिफोर ड्यू डेट आनंद ड्रॉज अनदर बिल ऑफ 84,000 ऑन विजय। ओके, अब यहाँ विजय एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब विजय के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। तो एंट्री विल बी आनंद टू, ओके, अमाउंट विल बी 80, क्योंकि अब आनंद जाकर उसको डिस्काउंट करने वाला है और प्रोसीड्स देने वाला है, ठीक है। अब व्हाट आनंद डिड, ही डिस्काउंटेड फॉर 81,600, विद दिस प्रोसीड द फर्स्ट बिल इज सेटल्ड। ओके, तो अब देखो 81,600 पैसा मिला, फर्स्ट बिल कितने का था, 60,000 का था, उसमें से अगर आप देखोगे 37,600 सपोज टू बी गिवन बाय आनंद, आनंद को अपना पोर्शन 37,600 का देना चाहिए था, ओके। सो बेसिकली द पॉइंट कम्स हियर कि अभी 84,000 आनंद उसको डिस्काउंट कराएगा एंड ही विल गेट द 81,600. What here it has been given कि with these proceed the first bill is settled and 14,400 were remitted to Vijay. Okay, the point comes over here कि अभी हमें कितना मिला, 81,600। अब आनंद को पहला बिल मीटअप करना है, 81,600 में जो भी पैसा आया सबसे पहले बिल 60,000 का उसे पे करना है, राइट। तो आनंद बोलेगा विजय को कि विजय यू गिव मी योर 2/3 शेयर, आई विल मेक इट टोटल एंड पे द फर्स्ट बिल। लेकिन जो भी पैसा आया उसने क्या किया, 81,600 में से 54,000 अगर आप देखोगे तो इट इज़ बिन गिवन ओवर हियर, 54,400 जो अमाउंट है वो आनंद विजय का पैसा है जो फर्स्ट बिल सेकेंड बिल से आता है। उसने क्या किया, विजय को रेमिट करने से पहले उससे उसका फर्स्ट बिल का शेयर मांगा। फर्स्ट बिल का शेयर कितना होता है, it will be 40,000, I'm sorry, not 20,000, 40,000. The total of 37,600 this and discount means 40,000. 40,000 वो पैसा रख लिया क्योंकि वो फर्स्ट बिल को उससे कलेक्ट वैसे भी करना था, दोनों मिलाया, अपना पैसा 20,000 का और उसका 40,000 का एंड फर्स्ट बिल पे कर दिया। तो अब उसके बकेट में 14,400 ही बचता है, विजय को देना है और उसी की एंट्री हमें यहाँ पर पास करनी है। So what I pass the entry over here, next entry, wait a minute, I'll just copy this. ये कुछ भी नहीं कर रहे, खाली पैसा इधर से उधर घुमा रहे हैं, राइट। अभी देखो बैंक में से मैं जाएगा कि एक मिनट, ये विजय को हम दे रहे हैं, ठीक है, आनंद की बुक्स में नहीं एंट्री हो रही, विजय के बुक्स में पैसा आएगा। कौन सा पैसा आएगा, 14,400, वो मैंने एक्सप्लेन किया कितना आएगा। उसके बकेट में डिस्काउंट का भी खर्चा आएगा, कितना आएगा, जो अभी मैंने 1,600 यहाँ पर दिखाया है। तो इन टोटल द टोटल टू आनंद से इसे लेना है द टोटल ऑफ 14,000 प्लस 1,600 दैट इज 16,000, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से पैसा इधर उधर घुमा रहे हैं, उसका शेयर लेते हैं, अपना शेयर मिलाते, फर्स्ट बिल पे कर रहे हैं, और जो बचा हुआ 54,000 देना चाहिए था फर्स्ट सेकेंड बिल से, लेकिन उसने फर्स्ट बिल का पैसा काटा और बाकी रेमिट कर दिया, तो विजय के बुक्स में पैसा आएगा। नाउ आई एम प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट पार्ट। ये देखो मैंने अभी यहाँ तक कंप्लीट किया है। नाउ बिफोर द ड्यू डेट द सेकेंड बिल विजय बिकम इंसॉल्वेंट। ओ माई गॉड, तो यहाँ पर विजय जब इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो ये एंट्री डिसऑनर की एंट्री पास होगी और डिसऑनर की एंट्री क्या पास होगी, यही एंट्री, यहाँ पर जो फोर्थ एंट्री है वो रिवर्स होगी। तो आई एम पोस्टिंग दैट बिल्स पेबल टू आनंद, ठीक है। मैंने फर्स्ट पहले एंट्री रिवर्स की, अगर आपको थ्योरी याद है तो मैंने आपको डिफिशिएंसी अकाउंट में भी सिखाया था, 84,000 की एंट्री मैंने रिवर्स की। अब मुझे डिफिशियंसी क्रिएट करना होगा, इट विल नॉट बी अ बैड डेट्स, इट्स गोइंग टू बी अ डिफिशियंसी, लेकिन फॉर दैट आई नीड टू मेक अ आनंद्स अकाउंट टू फाइंड आउट द डिफिशियंसी आई हैव बिन मीटिंग विद। सो 50% ही मिलने वाला है मुझे, तो पहले मैं आनंद के अकाउंट में, देखो यहाँ पर जो भी एंट्री पोस्टिंग की गई है मैं उसको डेबिट क्रेडिट में पोस्टिंग कर देती हूँ, ठीक है। सो आई एम जस्ट राइटिंग द अमाउंट, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। दैट इज आनंद इज क्रेडिटेड, ठीक है, देन
Anand is again debited with 18,800 plus 1,200, that is automatically 20,000. Anand is again debited with 84,000, right? 60,000 हो गया. अब यहाँ पर आनंद इज अगेन क्रेडिटेड विथ 14,400 और ये कितना रहेगा 1,600. देन आनंद इज अगेन क्रेडिटेड विथ 84,000. सो आइडियली मुझे आनंद से कितना आना चाहिए था वो देखते हैं बैलेंस. तो आई विल मेक अ टोटल ऑफ इट सो दैट आई विल बी, आप लोग भी कैलकुलेटर पे कर लो इस चीज़ को. सो this minus 104,823 56,000. सो आइडियली ये देखो यहाँ पर बैलेंस है तो आइडियली मुझे आनंद को 56,000 देना चाहिए था, लेकिन अब मेरे पास खाली 50 पैसा है, 50% है. 50 पैसा इन अ रुपी मतलब 1 रुपये में 50 पैसा, मतलब 50% मैं दे सकता हूँ. सो व्हाट एंट्री आई विल पास ओवर हियर. देखो आनंद टू बैंक. अब यहाँ पर ध्यान रखना मैं लिखने वाली हूँ डेफिशिएंसी अकाउंट. आनंद कितने के लिए था 56,000 के लिए था. मैं उसका सिर्फ 50% दे सकती हूँ. 50 पैसा इन अ रुपी मीन्स 50%. और बचा 28,000 मेरा डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा. ओके तो आप लोग थोड़ा सा सम को अच्छे से समझो, कंपाइल करो कौन किस पे ड्रॉ कर रहा है और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एंट्री लिख रही हूँ. अगर वो चीज़ समझ में आ जाती है तो किसके लिए पैसा आने वाला है, किसके लिए पैसा जाने वाला है, कब बैंक डेबिट होगा, कब बैंक क्रेडिट होगा, ये अगर समझ में आएगा तो अकोमोडेशन बिल आराम से आपको ईजिली आप कंप्यूट कर पाओगे. ओके नाउ लेट्स सी वन मोर सम एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सम फॉर अकोमोडेशन बिल. Rahim for mutual accommodation draws a bill of 3,000 on Ratan. Rahim discounted it for 2,925. He remits the amount 975 to Ratan. On the due date, Rahim is unable to remit his dues to Ratan and enables him to meet the bill. Okay. तो यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं दिया हुआ है कि कितना अमाउंट और कितने दोनों जन ने डिसाइड किया है, कितना परसेंटेज दे विल शेयर आउट ऑफ द डिस्काउंटेड बिल. He however accept the bill for 3,750. So यहाँ पर रहीम उसको अमाउंट नहीं दे पाया अपने शेयर का एंड फाइनली उन्होंने डिसाइड किया एक और बिल रेज करने का एंड विच रतन डिस्काउंटेड फॉर 3,625. The Ratan sends 175 to Rahim after discounting the above bill. So यहाँ पर जो अमाउंट ये बिल को डिस्काउंट करने पे आया, so Rahim has sent only 175 out of 3,625 to Rahim. ओके तो यहाँ पर भी कोई सच परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, एक नंबर्स दिया उसके बेसिस पे हमें ये वर्कआउट करना है. रहीम बिकम इंसॉल्वेंट एंड डिविडेंड ऑफ 80 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट. पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज. डन. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इट इज़ वेरी सिंपल. यहाँ जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है तो इन दैट केस इसमें परसेंटेज नहीं दिया जैसे एज वी हैव डन इन द लास्ट सम. So let us do the journal entry in both the parties and step by step we have to proceed. We cannot vaguely go and write all the journal entry at a time. So I have made a journal entry format over here. So first I am passing the entries simultaneously I am going to pass the entries in the books of Rahim as well as the Ratan. So first they have drawn Rahim and a mutual accommodation draws a bill of 3,000 on Ratan. ओके यहाँ पर रतन के ऊपर 3,000 बिल रेज हुआ है. सो फर्स्ट एंट्री विल बी, सबसे पहले इसके लिए क्या है, दिस इज गोइंग टू बी द बिल रिसीवेबल. किसके कारण, रतन. ओके सो अमाउंट ऑफ दैट बिल इज 3,000 एंड ये ही बिल अगर तुम रतन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी द बिल्स पेबल. किसके नाम पे, रहीम टू Ratan. Okay, I'm sorry, Rahim to bills payable. Done. ये सिंपल है, इसमें कोई भी इशू नहीं है. थोड़ा टिपिकल पॉइंट आएगा ओनली इन द वन जर्नल एंट्री एंड नथिंग ग्रेट. देन व्हाट हैपन, वन बाय वन वी विल गो. सो टिल नाउ वी हैव डन दिस एंट्री, mutual accommodation this much, right? Rahim discounted it for 2,925. Okay, now we will going to pass this entry over here. Wait,
रहीम ने डिस्काउंट किया है तो एंट्री रहीम के बुक्स में आएगी. ओके, वेट अ मिनट, आई डोंट नो व्हाई ऑलवेज इट टेक्स डेट. चलेगा. देन इट्स 2. इसको डिस्काउंट होते ही बैंक में पैसा आया. कितना आया? 2925, 2925. देन एंड टू बी आर, और आपको पता है कि व्हाट विल द रेस्ट अमाउंट विल बी, ये बन जाएगा डिस्काउंट. ओके, अमाउंट ऑफ दैट डिस्काउंट, ये 3000 का बिल है एंड अमाउंट ऑफ दैट डिस्काउंट विल बी 3000 माइनस 75, राइट. तो आपको ये समझ में आ गया. ये इसके बुक्स में एंट्रीज नहीं फ्लो होगी, तो ध्यान रखना इसके बुक्स में एंट्री बिल्कुल फ्लो नहीं होगी. अब हम जा रहे हैं सेकेंड एंट्री पास करने. ही रेमिट्स, यहाँ लिखा है देखो, ही रेमिट्स 975 टू रतन. अब हमें ये समझना है किस बेसिस पे 975 रतन को दिया है. अब देखो, हमें पहले थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि क्योंकि सिंस नथिंग इज गिवन कि 60%, 40% या 2/3, 1/3 ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो आई एम जस्ट चेकिंग इट आउट टू 2925, राइट. तो हम इसने कितना रेमिट किया? 975. तो 975 का परसेंटेज क्या होगा ऑन द टोटल बिल? 2925. डन. सो 33.33%. यू कैन से 1/3 ऑफ द अमाउंट इज बिन रेमिटेड. तो 3000 का 1/3 मीन्स 1000 हैज़ बिन रेमिटेड. तो मैं रेमिट कर रही हूँ और उसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास कर रही हूँ? ओके, आई जस्ट राइट 1 2 3. देन तो थर्ड एंट्री क्या होगी हमारे केस में? यहाँ पर हम रेमिट कर रहे हैं, रतन को रेमिट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या आएगी? रतन अकाउंट टू बैंक. बैंक में हमने लिखा है 975, हम उसको रेमिट करने वाले हैं. दैट इज गोइंग टू बी द 1/3 और साथ में डिस्काउंट, राइट. 1/3, तो डेफिनेटली 75 का भी 1/3 अमाउंट डिस्काउंट में भी जाएगा, दैट इज 25. और हमें समझ में आ रहा है कि 1000 इज अ रतन का शेयर, दैट इज नथिंग बट अ 1/3 अमाउंट, राइट. अब यही चीज़ यहाँ पर रिसीव होगी. रिसीव क्या होगी यहाँ पर? बैंक में पैसा आएगा, डिस्काउंट इज अ खर्चा फॉर हिम. टू किससे आ रहा है? रहीम से आ रहा है, राइट. बैंक में कितना पैसा आ रहा है? 975, राइट. डिस्काउंट में कितना आ रहा है? 25. रहीम से कितना अमाउंट रहेगा ड्यू? 1000. देन वी आर डन ओवर हियर. What happened? On a due date, Rahim is unable to remit his dues. रहीम को अपना पैसा देना था, 2000 रुपीज़ देना चाहिए था, 3000 का था, राइट. 3000 में से 1000 तो रतन का था, तो बचा 2000 किसका था? रहीम का था. और रहीम को एक्चुअली ड्यू डेट पे देना था बिकॉज बिल कौन मीटअप करने वाला था? ड्रॉय. एंड ड्रॉय हमारे केस में कौन था? रतन. और नहीं दे पाया 2000 रतन को वो. तो व्हाट दे हैव डिसाइडेड, ही हाउएवर एक्सेप्टेड अ न्यू बिल. ओके, तो इन्होंने डिसाइड किया 3750 का न्यू बिल इन लोग एक्सेप्ट करेंगे. तो व्हाट हैपन हियर, नया बिल रेज हुआ रतन के नाम पे. तो व्हाट विल बी द एंट्री? इसने एक्सेप्ट किया है, तो फॉर हिम इट्स गोइंग टू बी द बिल्स पेएबल. कितना अमाउंट रहेगा? 3750. 3750. डन. तो यहाँ पर इनका एक्सेप्टेंस रहेगा. मूविंग फॉरवर्ड, 4th एंड 5th. नहीं, अब यहाँ पर सेम चीज़ इसके लिए क्या रहेगा? इट्स गोइंग टू बी द बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल अमाउंट विल बी 3750 and same here 3750. Now moving forward, इसने जाके डिस्काउंट कराया, लिखा है ना यहाँ देखो, ही डिस्काउंटेड फॉर 3625. तो चलो इसके बुक्स में एंट्री करेंगे. बैंक में पैसा आएगा, डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल. तो 3750. बैंक में कितना पैसा आएगा? दे हैव रिटन अस 3625. ओके, तो डेफिनेटली द डिफरेंस अमाउंट विल बी नथिंग बट
डिस्काउंट अमाउंट 125 डन। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है रतन सेंड्स 175 टू रहीम आफ्टर डिस्काउंटिंग द अबव बिल। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एज पर व्हाट यू हैव इट इज गिवन इन योर मॉड्यूल। ठीक है, वर्ड्स द बेसिक फंडा अबाउट दैट। दे कितना रेमिट किया, ये हमारे केस में रेमिट हुआ है 175 अमाउंट। किसको? रहीम को, राइट। रहीम को कितना हुआ, तो रहीम टू बैंक, राइट। अब यहाँ पे आएगा टू डिस्काउंट, लेकिन हमें समझना है, ये समझ में आ गया 175 देना, पर डिस्काउंट कितना? डिस्काउंट 125%, 125 रुपीज़ का ही कुछ पोर्शन यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि डिस्काउंट एक जन ने किया तो उसका रेस्ट पोर्शन वो शेयर करता है। तो यहाँ एक पॉइंट दिया है आप इसमें कि पहले हमें देखना है रहीम ने कितना बेनिफिट उठाया है। फर्स्ट बिल का पहले से 2000 नहीं दिया, ऊपर से अभी जो रतन इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसफ़र कितना कर रहा है? 175। तो मतलब टोटल बेनिफिट, जस्ट अ मिनट, हाँ, टोटल बेनिफिट कितना उठाया जा रहा है? 2000 प्लस 175, मतलब रहीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 125 रुपी 2175। तो अकॉर्डिंगली डिस्काउंट का भी जितना बेनिफिट रहीम ने उठाया है उतना का डिस्काउंट भी उसे बेयर करना पड़ेगा। सो व्हाट इट इज़ गिवन ओवर हियर, 3625 में 125, 3625 में 125 इज बेसिकली अ डिस्काउंट, राइट। तो अब मैं यहाँ लिख रही हूँ 3625 में डिस्काउंट है 125, राइट। तो 2175 जो बेनिफिट रहीम ने उठाया है उसका कितना डिस्काउंट का शेयर किसके बकेट में जाएगा? रहीम के बकेट में जाएगा, राइट। कितना? दैट विल बी 75 रुपीज़। तो मतलब ये जो पार्ट है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर यू ऑल, कि इन्होंने प्रपोर्शनेट ट्रांसफ़र किया, बिकॉज इन दिस सम देयर इज़ नथिंग गिवन कि कितना किसका शेयर है, वो तो हम निकाल रहे हैं। और यहाँ पर फाइनल अमाउंट भी अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, एज वी हैव डन इन द लास्ट, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द 175 रुपीज़ बैलेंस कैसे आया। तो व्हाट दे हैव डन इन द वर्किंग नोट, दे हैव शोड इट कि 175 को इनके बेनिफिट्स के हिसाब से 125 डिस्काउंट को बेनिफिट्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड हेंस दिस बिकम 75, एंड नाउ द टोटल रुपीज़ 250 रुपीज़ हैज़ बिन गिवन टू रहीम। और यही एंट्री रहीम की बुक में कैसे दिखेगी, उसे मिला है, राइट। तो इसके बुक्स में बैंक डिस्काउंट टू बैंक, सॉरी इट्स रतन, ठीक है। कितना मिला बैंक में? 175, this is 75 and this is going to be 250 rupees. Then we are over here. अब क्या हुआ देखते हैं स्टोरी में। रहीम बिकम इंसॉल्वेंट एंड 80 रुपीज़, मतलब 80% ही हमें उनसे मिला है, तो रहीम बन गया इंसॉल्वेंट। तो चलो, मतलब वो ऑनर नहीं कर पा रहा है बिल, तो एंट्री विल बी, 6th एंट्री विल बी, जो हमने बिल्स पेबल की एंट्री पास की है वो रिवर्स हो जाएगी क्योंकि ही बिकम इंसॉल्वेंट। सो यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट एंट्री पास की थी रिगार्डिंग 3750 मैं रिवर्स कर दे रही हूँ, राइट। वेट ना, कंट्रोल सी एंड रिवर्स। तो सेम वे इसके बुक्स में भी रिवर्स हो जाएगी। क्या रिवर्स होगी? बिल्स रिसीवेबल की एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो व्हाट आई एम, अच्छा, रिवर्स तो होगी वो फर्स्ट। यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, रहीम के केस में ये बिल डिस्काउंट हो चुका है, तो आपको भी पता है हम एंट्री क्या पास करते हैं, ड्रॉई टू बैंक। तो यहाँ पर रहीम इज़ अ ड्रॉई, राइट। जब डिस्काउंट हो जाता है तो हमारी एंट्री चेंज हो जाती है, ड्रॉई टू बैंक, अमाउंट विल बी सेम 3750, एंड यहाँ पर भी 3750। डन। अब हम जा रहे हैं इंसॉल्वेंसी का अमाउंट निकालने, और आपको पता है रहीम के बुक में इंसॉल्वेंट होने पर रहीम अपने बुक में लिखेगा डेफिशिएंसी अकाउंट और रतन के बुक में लिखा रह जाएगा बैड डेट्स अकाउंट। सो अब वो कैसे निकालेंगे? आपको मैंने लास्ट सम में भी बताया था, वी हैव टू मेक रतन्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रहीम। तो आई एम जस्ट रैंडमली मेकिंग
रतन्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, कौन है ये हमारे केस में, रहीम के बुक्स में, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ रहीम आई एम मेकिंग दैट। जस्ट आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये डेबिट एंड क्रेडिट की पोस्टिंग मैं कर रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट अगर आप देखोगे, रतन इज बिन क्रेडिटेड विथ 3000। मैं रैंडम बना रही हूँ ताकि मुझे अपना कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो जाए मेरा। देन रहीम इज अगेन, रतन इज 1000, ये देखो यहाँ पर है। देन रतन अगेन 3750, ठीक है, रतन इज 3750। देन बैंक है, रतन है, रतन 250, तो आई एम अगेन पोस्टिंग 250। देन रतन अगेन 3750। जस्ट मैं अपने आप को क्रॉस चेक कर रही हूँ, और मैं ये फॉर्मेट इसीलिए बना रही हूँ ताकि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, एक प्लस माइनस का भी मिस्टेक विल चेंज माई आंसर। सो बैलेंसिंग फिगर देखो, मुझ 7000 माइनस 4750, ओके, तो 2250 अगर आप देखोगे तो मेरा क्रेडिटर 2250 से था। अब मैं एंट्री क्या पास कर रही हूँ, बहुत अच्छे से समझना, 7th एंट्री है ये मेरी। तो रतन, रतन को कितना मिलने वाला है, 2 बैंक, एंड मेरे बुक्स में मैं क्या लिखूँगी, डेफिशिएंसी अकाउंट, अमाउंट इज 2250। इसका 80% ही हम दे पा रहे हैं, 1800, एंड रेस्ट अमाउंट 450 इज अ डिफिशियंसी। अब ये एंट्री रतन की बुक में कैसे पास ऑन होगी, आप थोड़ा सा नोटिस करना, राइट। रतन के बुक्स में एंट्री पास होगी रिगार्डिंग, बिकॉज अब ये इसका डेटर है, तो बैंक में इसके पास पैसा आने वाला है। अब ये हो जाएगा इसके लिए बैड डेट्स, ठीक है, 2, डन, अमाउंट विल बी 1800, बैड डेट्स हो गया 450, आना कितना था, 2250। Done. The whole sum is over. The only concept I tried to explain over here, new concept is this thing, right? अब आप इस sum को देखो, and at the same time I have given you the whole solution, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको अलग सा पॉइंट डिस्कस किया है, ये पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको भी ध्यान रखना है कि हाउ दिस सम हैज़ बिन सॉल्व। सो एवरी आंसर इज बिन गिवन, ऑल द जर्नल एंट्रीज इज ऑल्सो गिवन, you just check it out, and this is going to be the last sum, and here we are ending this chapter of bills of exchange as per what is given in your module. Bye, thank you.